हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश फर्स्ट बुक का हनी ड्यू का 9th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर्स नेम द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट रीड करेंगे। चैप्टर के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जैसे हम किसी भी पहाड़ी की जो चोटियाँ होती है या विशाल चट्टानें होती हैं, उनको दूर से देखते हैं तो वो कई आकार धारण करती हुई प्रतीत होती है। जैसे वो किसी पशु, पक्षी या मानव की आकृति से मिलती जुलती हो सकती है। लोग इन आकृतियों को कभी कभी कहानियों से जोड़ देते हैं। कुछ कहानियाँ सत्य निकलती है तो कुछ नहीं। विशाल प्रस्तर चेहरा, द ग्रेट स्टोन फेस, ऐसी ही एक आकृति है जो घाटी के निवासियों को भविष्यवाणी की याद दिलाती है। अब ये भविष्यवाणी क्या थी, क्या यह सत्य निकली, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, hilltop and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. तो एक दोपहर बाद की बात है कि सूर्य अस्त हो रहा था, तो एक माँ और उसका छोटा सा जो बेटा था वो अपनी कुटिया के द्वार पर बैठे इस महान प्रस्तर चेहरे के बारे में बात कर रहे थे। यद्यपि बहुत मीलों दूर था, फिर भी सूर्य की चमक में इसकी सभी विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देखनी हो तो उन्हें केवल अपनी निगाहें ऊपर उठानी पड़ती थी। Sunshine brightening all its features. And what was the great stone face? और यह महान प्रस्तर चेहरा क्या था? The great stone face was a work of nature. Formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. If the spectator approached too near, he lost the outline of the
enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually bearing over it. A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. तो जो महान प्रस्तर चेहरा इस प्रकृति की ऐसी रचना थी जो पर्वत की खड़ी साइड पर कुछ विशाल चट्टानों द्वारा बनाई गई थी। इस प्रकार साथ रखी गई थी कि उपयुक्त दूरी से देखने पर वो मानव के चेहरे से मिलती जुलती लगती थी। यदि कोई भी दर्शक बहुत निकट से जाकर के उसको देखे तो विशाल चेहरे की रूपरेखा को वो खो देता था और विशाल चट्टानों का एक दूसरे पर रखा हुआ एक ढेर मात्र देख सकता था। किंतु दूरी से देखें तो जैसे कोई समूह बना हुआ बादलों का महान प्रस्तर चेहरा हो, ऐसा सजीव लगता था। बहुत से लोगों का यह विश्वास था कि उपजाऊपन के लिए घाटी इस दयालु चेहरे की बहुत आभारी थी जो इसकी ओर निरंतर मुस्कुरा रहा था। जैसे हमने आपको पहले भी बता दिया कि वो एक माँ और उसका छोटा सा बेटा अपनी कुटिया के द्वार पर बैठ कर के इस महान प्रस्तर के चेहरे को तरफ जैसे टकटकी लगाकर वो देख रहा था, तो उसके बारे में बात जो दोनों कर रहे थे। और जो बच्चा था उसका नाम था अर्नेस्ट। बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। जब महान जो प्रस्तर मुख था, तो जैसे ही वो बोलता है, मदर said he while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born. तो जैसे ही वो दोनों माँ बेटे अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, तो वो बच्चा अर्नेस्ट नाम का अपनी माँ से कहता है कि माँ, काश ये बोल पाता, क्योंकि वह इतना दयालु दिखता है कि इसकी आवाज़ भी सचमुच सुखद होगी। यदि कभी भी मैं ऐसे चेहरे वाले आदमी को देखूं तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। उसकी माँ ने उत्तर दिया, यदि एक पुरानी भविष्यवाणी सही घटित हो जाए तो किसी दिन ठीक उसके जैसे चेहरे वाला आदमी हम देख सकते हैं। तो अर्नेस्ट को बड़ी उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि प्रिय माँ, तुम्हारा मतलब किस भविष्यवाणी से है? कृपया मुझे उसके बारे में बताओ तो सही। तो उसकी माँ उसे एक कहानी सुनाती है। वो कहानी उसकी माँ ने उसको सुनाई थी जब वह छोटे अर्नेस्ट से भी छोटी थी। किसी आने वाले दिन यहीं आसपास एक बच्चे का जन्म होगा जिसका अपने समय का सबसे महान और नम्र व्यक्ति बनना निश्चित है, और बड़ा होने पर उसका चेहरा बिल्कुल महान प्रस्तर चेहरे जैसा होगा। बहुत से लोग अभी भी इस भविष्यवाणी में विश्वास करते थे, पर अन्य लोग इसे कुछ नहीं, बस बेकार की बात मानते थे। जो भविष्यवाणी वाला यह आदमी
क्योंकि अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ था। वो अभी प्रकट नहीं हुआ था। तो वो कहता है, अरे नियर हर हु वाज, तो जैसे ही वो लड़का उससे कहता, अरे माँ, अर्नेस्ट अपने सिर के ऊपर हाथ रख के और ताली बजाता है और चिल्लाता है, ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, clapping his hands above his head. I do hope that I shall live see him. His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fine, fanciful hopes of her little boy, so she said to him, perhaps you may. And Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be mild and quiet youth. Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. About this time there went a rumor throughout the valley that the great man, who was to bear a resemblance to the great stone face, had appeared at last. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and, being sharp in business matters, had become to so very rich that he would have taken him 100 years only to count his wealth. In some time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. तो अर्नेस्ट कहता है कि माँ, जो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैं उसको ज़रूर देखूँगा, उसकी जो माँ थी वो बड़ी ही रहस्य स्नेहीमयी और विचारशील महिला थी। और उसने सोचा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कल्पनापूर्ण आशाओं से हतोत्साहित उनको करना अच्छा नहीं था। अतः उसने उससे कहा, शायद तुम देख सकते हो। और अर्नेस्ट अपनी माँ की सुनाई कहानी को कभी नहीं भूला। जब कभी वो महान प्रस्तर चेहरे की तरफ देखता था, वो कहानी उसके दिमाग में हो जाती थी। लकड़ी की कुटिया में जहाँ उसका जन्म हुआ था, उसने अपना बचपन बिताया था और अपनी माँ के प्रति बड़ा कर्तव्यपरायण भी था। इस प्रकार वो बहुत उसकी मदद करता था। अपने छोटे हाथों से उससे भी अधिक उसके प्यारे मन से वह उसकी सहायता करता था। इस प्रकार वो खुश था। फिर भी विचार मग्न बालक बड़ा होकर एक मृदुभाषी और शांत युवक बन गया। जैसे ही वो बालक ये सोचता था कि उसका कोई गुरु भी नहीं है, लेकिन वो उस महान प्रस्तर जो चेहरा देखता था उसका एक शिक्षक बन गया। एक दिन की बात है कि जब काम वो उसका पूरा हो गया तो घंटों तक उसकी तरफ वो घूरता घूरता देख रहा था, जब तक कि उसकी कल्पना
पूरी नहीं हुई वे विशाल विशेषताएं उसकी पहचानती थी और दयालुता से और प्रोत्साहन की मुस्कान उसको मिलती थी। और लगभग इसी समय जब पूरी घाटी में यह अफवाह फैल गई कि महान प्रस्तर चेहरे से मिलता जुलता वो एक आदमी अंततः आज प्रकट हो गया है, तो उसको ऐसा लगा कि बहुत वर्ष पहले की जो एक युवक जो घाटी छोड़ कर के दूर एक बंदरगाह पर चला गया था, जिसका नाम था गैदर गोल्ड, वो एक दुकानदार के रूप में उसने जो व्यापार शुरू किया था, तो व्यापारिक मामलों में वो बड़ा दक्ष था, इतना अधिक अमीर भी ज़्यादा हो गया और उसकी जो दौलत को वो मात्र गिनने में ही यदि गिनी जाए तो 100 वर्ष लगते। समय रहते अपनी जन्मभूमि घाटी का उसके अंदर विचार आया और वो वापस वहाँ पर आकर आने का उसने फैसला कर लिया जहाँ उसका जन्म हुआ था, और वहीं अपने अंतिम दिन बिताने की उसने सोची। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many ages of delay, was a land to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day, the imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gatherhold." A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of old man with yellow skin. "The very image of the great stone face," shouted the people. "Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last." And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was a likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come. Fear not. Ernest, the man will come." तो जैसे ही वो आया, जिसका नाम था गैदर गोल्ड, दुकानदार के रूप में, तो अर्नेस्ट को ये विचार आया कि ये वहाँ जो महान आदमी था वो बड़ा नेक आदमी है, भविष्यवाणी वाला आदमी है, और इतने युगों की देरी के बाद ये अंततः अपनी मातृभूमि में जल्दी दिखने वाला है। तो एक दिन जबकि वह लड़का अपनी घाटी को घूर करके देख रहा था, कल्पना कर रहा था, तो महान प्रस्तर चेहरा उसे वापस घूर रहा था। उसे पहियों का शोर सुनाई दिया और लोगों की भीड़ भी चिल्लाई कि महान गैदर गोल्ड यहाँ आ गया। 4 घोड़ों वाली गाड़ी सड़क के मोड़ पर तेजी से दौड़ी। उसमें कुछ खुली खिड़की से पीली चमड़ी वाले एक बूढ़े आदमी को उसके चेहरे को देखा। महान प्रस्तर चेहरे का ठीक प्रतिबिंब है यह। लोग चिल्लाए, निश्चित ही पुरानी भविष्यवाणी सही होने वाली, आखिरकार हमारे पास हमारा महान आदमी यहाँ है। और अर्नेस्ट जिस विचार ने अत्यधिक उलझन में डाल रखा था, उसको ऐसा लगा कि सचमुच अब वो विश्वास करने लगे कि भाई जो भविष्यवाणी करते थे वो आज सत्य हो गई है। और वो भी उसकी तरफ मुड़ा। घाटी के ऊपर उसने नज़र डाली जहाँ पर प्रस्तर चेहरा कहता हुआ ऐसा प्रतीत हुआ कि वह आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वो आदमी आएगा। इस प्रकार इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ग्रेट स्टोन
फिर इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन।